My dear students, welcome to Mathological. Let us start second session on probability. So the first question, if the probability of getting a head is double the probability of getting a tail when a biased coin is tossed, this is not an unbiased coin, so the probability of getting a head is double that of probability of getting a tail. 2 times that of probability of getting a tail. Then find the probability of getting exactly one head if the coin is tossed twice. सबसे पहले तो हमें probability निकालना है कि हेड आने का probability क्या होगा. So we know कि in a coin toss या तो head आएगा या tail आएगा. So probability of a head plus probability of a tail, because either the head will be coming or the tail will be coming. So total probability will be equal to 1, because these are mutually exclusive and exhaustive events. Exclusive because दोनों साथ में नहीं आ सकते, exhaustive because इनके अलावा कुछ और नहीं आ सकता. So total probability will be equal to 1, and probability of head is 2 times that of probability of tail. So 2 times probability of tail plus probability of tail is equal to 1, and hence probability of tail will be equal to 1 by 3, and hence probability of head will be double that of 1 by 3, which is 2 by 3. Clear? We need exactly one head if the coin is tossed twice. तो 2 times हमने coin को toss कराया है, so exactly one head आने की probability क्या होगी? So if exactly one head is there, दो cases बनेंगे, या तो first time head आए या second toss पे head आए. These are the 2 cases. Isn't it so? तो probability of exactly one head will be equal to, first case में probability क्या होगा? First time head आए, head आने की probability 2 by 3 है, तो 2 by 3 into 1 by 3 plus first time tail आए, second time head आए, तो 1 by 3 into 2 by 3 total will be 4 by 9. और इन जनरल जैसे मैं लास्ट सेशन में देखा था कि 2 में से किसी एक बार हेड आना है, तो 2c1 for head, and for one head probability is 2 by 3 to the power 1, and for one tail probability is 1 by 3 to the power 1. So this will be 4 by 9. Okay, option D is the answer. Next question. There are 10 balls in a box, and the box also contains one green and one yellow, including 10 में ही included है one green and one yellow. If 3 of the balls are chosen at random without replacement, what is the probability that 3 balls chosen will include the green ball but not the yellow ball? So green ball will be included but yellow ball will not be included out of 3. तो total cases कितने बने हमारे? Probability of this event is equal to number of favorable outcomes divided by number of total outcomes. और total outcomes कितने हो सकते हैं? 10c3. 3 balls are chosen out of 10 balls. But the favorable condition is that this must include green ball and should not include yellow ball. तो green ball तो हमेशा ही include करनी है हमें, which implies कि out of 3 balls, 1 must be green. और एक ही green है. और rest of the 2 balls must be from other than yellow ball. तो yellow ball should never be there. No yellow ball. So अब 8 और balls रह गई हैं, तो 8 में से 2 हमें select करनी पड़ेगी. Green तो हमेशा ही select करनी है, तो 1c1 for the green ball, because that has to be selected always in all cases, into 8c2. So 8c2 is 8 into 7 by 2, 28, divide by 10c3, 10 into 9 into 8 by 6. So 28 by 120, which is 7 by 30. So answer will be 7 by 30. Option B will be the answer. Okay. Clear है? ठीक. Next question. There is a group of people consisting of 10 men and 6 women, including 4 married couples. If one man and one woman is selected at random, what is the probability that a married couple gets selected? One man and one woman is selected at random. तो total cases कितने बनेंगे हमारे? Probability of the event is number of favorable outcomes divided by number of total outcomes. Total outcomes हमारे कितने होंगे? One man is selected out of 10, one woman is selected out of 10. तो 10c1 into 6c1 और 10 into 6 हो गया. और काम के आउटकम क्या है हमारे? That what is the probability that a married couple gets selected? A married couple gets selected, और married couples है हमारे exactly 4. तो मैरिड कपल कब सेलेक्ट होगा? लेट अस से कि देयर आर फ्रॉम मेन देयर आर 4 हस्बैंड्स, ठीक है, एंड देयर आर 4 वाइफ्स करस्पॉन्डिंगली इन द वुमेन. अब मैरिड कपल एग्जैक्टली तब सेलेक्ट होगा व्हेन बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर सेलेक्टेड, यानी कि फ्रॉम मेन हस्बैंड इज सेलेक्टेड, फ्रॉम वुमेन वाइफ इज सेलेक्टेड. इजंट इट सो? तभी तो मैरिड कपल सेलेक्ट होगा. तो एग्जैक्टली 4 केसेस बनेंगे, एग्जैक्टली 4 केसेस बनेंगे. देखो ऐसा नहीं करना है कि 4c1 into 4c1 कर दिया, बिकॉज उसमें प्रॉब्लम है. उसमें प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कि हस्बैंड आ जाए H1 और वाइफ आ जाए W2, तो ये तो मैरिड कपल नहीं हुआ ना.
दैट इज वाई 4c1 इंटू 4c1 नहीं करेंगे. एग्जैक्टली 4 ही केसेस बनेंगे हमारे व्हेन द मैरिड कपल इज सेलेक्टेड, व्हेन द हस्बैंड एंड वाइफ आर करस्पॉन्डिंगली द सेम. ठीक है, सो ओनली 4 केसेस. तो 4/60 विच विल बी 1/15. दिस विल बी द आंसर, 1/15. ऑप्शन सी इज द आंसर. ओके, क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. An integer n between 1 and 99, both inclusive, is to be chosen at random. What is the probability that n into n plus 2 will be divisible by 3? n into n plus 2 will be divisible by 3. Let us say हमने 1 को select किया. So if 1 is selected, so 1 into 1 plus 2, यानी कि 1 into 3, this is divisible by 3. If you selected 2, so 2 into 2 plus 2, 2 into 4, not divisible by 3. 3 select किया, तो 3 into 5, of course divisible by 3. फिर 4 select किया, 4 into 6, of course divisible by 3. 5 करोगे, 5 into 7, not divisible by 3. 6 किया, 6 into 8, of course divisible by 3. Basically, if n is divisible by 3, या तो n 3 का मल्टीपल हो तो चल जाएगा, because n into n plus 2 will be divisible by 3, n of course मल्टीपल है 3 का. अगर if n is 3k plus 1, यानी कि 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, 1 will be remainder when you are dividing by 3. In that case, n तो 3k plus 1 हो गया. ओके, ठीक है, n तो 3k plus 1 हो गया, बट n plus 2 क्या होगा? दैट विल बी 3k plus 3. सो दिस विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3. सो तब भी चलेगा. ओनली व्हेन n इज 3k plus 2, यानी कि 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इज 2. इन दैट केस 3k plus 2 into 3k plus 2 plus 2, which is 3k plus 4, this will not be a multiple of 3. So that is why these two cases are allowed. n should be either a multiple of 3 और 3 का मल्टीपल प्लस 1. तो 3 के वाले केसेस कितने बनेंगे हमारे? 3, 6, 9 till 99. Total 33 numbers are there. 3k plus 1 वाले 1, 4 till 97. ये भी 33 numbers होंगे. Because basically total 99 numbers are 33 will be divided by 3, multiple of 3. 33 will be multiple of 3 plus 1 and 33 will be multiple of 3 plus 2. तो टोटल फेवरेबल केसेस हो गए हमारे पास 33 प्लस 33, और हम एक नंबर चूज करें 99 में से, तो टोटल केसेस हो गया 99 डिवाइड बाय 99, तो दिस विल बी 2/3. आंसर विल बी 2/3 इजीली. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. ओके, ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉक्स कंटेन्स 10 cards numbered from 1 to 10. If 5 cards are selected at random without replacement, what is the probability that the median of the numbers selected is 4 if they are arranged in increasing order? Median of the numbers is 4. जो भी नंबर्स हमने सेलेक्ट किए हैं उनका मीडियन कितना आ रहा है? 4 आ रहा है. मीडियन इज वैल्यू एट एक्जैक्टली द मिडिल प्लेस. दिस इज नॉट मीन. मीन थोड़ी है, मीन यानी कि एवरेज होता है, बट मीडियन क्या है? प्लेस वैल्यू से मिडिल में आएगा. ठीक है, सो 5 cards are selected. So out of 5 cards, 2 cards should be less than 4 and 2 should be greater than 4. So 4 will be exactly in the middle. So 2 cards will be less than 4 and 2 cards will be more than 4. Okay, 2 are less than 4 and 2 are more than 4. तो probability इस बात की क्या होगी? That median of the numbers selected is 4 if they are arranged in increasing order. Okay, total cases कितने बनेंगे? We have selected 5 cards out of 10. Total 10 cards है, 10c5 is total cases. But our favorable cases, less than 4 cards में से हमें 2 cards select करने. So less than 4 cards are 1 card, 2 card and 3 card. So we have to select 2 cards out of these 3, 3c2 into. Greater than 4 cards क्या है? From 5 to 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 cards में से we have select 2, तो into 6c2. 3c2 into 6c2 divided by 10c5. So this becomes 3 into 15 divided by 10 into 9 into 8 into 7 into 6 divided by 5 into 4 into 3 into 2. So 5 into 2 से कैंसल आउट हो गया 10, 4 से बचा 2 और 3 से बचा 2. ओके, और 3 से और फर्दर 3 से 9 कैंसल आउट हो गया, ऊपर बचा 5. 5 डिवाइडेड बाई 7 into 4, 5/28. The answer is 5/28. Probability will be 5/28. Is that clear? Okay. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
2 dice are thrown, what is the probability that the sum of the numbers appearing on the 2 dice is greater than 9 if 5 appeared on the first dice? Now this is additional condition on the probability, and such probability is known as conditional probability. Conditional probability. If you understand the concept, then this is far more easier than a probability. ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे, बट पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको. ओके, सो लेट अस से वी नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए गिवन बी दैट बी हैज अकर्ड. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द 2 डाइस इज ग्रेटर देन 9 इफ 5 अपीयर्ड ऑन द फर्स्ट डाइस. तो 5 अपीयरिंग ऑन द फर्स्ट डाइस दैट इज गिवन, कि ऐसा तो हुआ है, फर्स्ट डाइस में 5 आउटकम आ गया है, अब बताओ क्या होगा. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, और प्रॉपर्ली दिस इज रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में वी विल हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए एंड बी बोथ हैव अकर्ड, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और number of intersection B divided by number of B. Okay, the logic is that if we draw the Venn diagram properly, so let us say this is the case when A is happening, okay, and this is the case when B is happening. This is A, this is B. ठीक है, so the question is saying कि B तो हो ही चुका है, तो B is given, तो if B is given और B हो गया है, इसके बाद में ही हम सारी की सारी कहानी पूछ रहे हैं, यानी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं. तो सिंस B has surely happened, so all the events pertaining total sample space हमारा क्या होगा, that will be B happening. This is our total sample space this time, because since B has already happened, तो B के बाहर का कोई चीज तो हो नहीं सकता. So anything that can occur should be inside B, isn't it so? और हमें चाहिए probability of A that B has already happened. So the only elements of A that are of concern are these elements. ठीक है, so this will be the probability of A given B. ठीक है, और number of A intersection B, number of A intersection B. Okay, क्या ये clear है? So in general, let us say if the question was saying कि number of A, टोटल इवेंट हमारा 100 होता, जब परसेंटेज में 100 होता, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दैट इज इक्वल टू 40, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दैट इज इक्वल टू 50, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 10. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी वुड हैव बीन 10 अपॉन 50, बिकॉज ये पूरा 50 यही हमारा सैंपल स्पेस है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 50 और न्यूमरेटर में आ जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 10. ओके, इज दैट क्लियर? क्या बात समझ में आती? तो फॉर्मूले को याद नहीं करना है, बस समझ लेना है, समझ लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे. और फॉर्मूला को भी समझ लेना है अच्छे से, ताकि अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आए कभी तो उसको भी सॉल्व कर सको. क्या बात क्लियर है? ओके, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में वापस से चलते हैं. सो द क्वेश्चन इज 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द 2 डाइस इज ग्रेटर देन 9. तो सम ऑफ द नंबर्स इज ग्रेटर देन 9, 5 हैज अपीयर्ड ऑन द फर्स्ट डाइस. तो डाइस नंबर 1 का आउटकम इज क्लियर, 5 है और कुछ आउटकम नहीं आ सकता, दैट इज फिक्स्ड. और ये हमारा हो गया इवेंट नंबर बी, इवेंट बी that is given. Dice 2 का आउटकम कुछ भी हो सकता है, it can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4, it can be 5, it can be 6. टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 6 पॉसिबल हो सकते हैं, बिकॉज डाइस 1 पे तो फिक्स हो गया. तो डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आ सकता है? 6 आएगा. ठीक है, बिकॉज 5 हैज अपीयर्ड ऑन द फर्स्ट डाइस, सेकंड डाइस पे ओनली आउटकम्स पॉसिबल है 6. 1 into 6, टोटल आउटकम 6 होंगे, 1 on डाइस 1 एंड 6 on डाइस 2. ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी, और ए हमारा क्या है कि नंबर अपीयरिंग ऑन द 2 डाइस इज ग्रेटर देन 9. 9 से बड़ा सम आए कब आ सकता है? व्हेन फर्स्ट डाइस पे तो 5 ही आएगा. 5 9 से बड़ा चाहिए, 9 के इक्वल भी नहीं चाहिए, तो 5 + 5 आ सकता है, या 5 + 6 आ सकता है. सो दीज आर 2 आर फेवरेबल केसेस आउट ऑफ टोटल केसेस. तो 2 विल बी ऑन द न्यूमरेटर, 2/6, आंसर विल बी 1/3. 1/3 ऑप्शन डी. और टोटल केसेस आए हमारे 6 में से कुछ भी वैल्यू आ जाए. ठीक है, डाइस 2 पे कुछ भी वैल्यू आ जाए, तो टोटल केसेस आ गए 6. काम के केसेस क्या है? व्हेन डाइस 2 पे 5 आए या फिर 6 आए, बिकॉज हमें सम चाहिए ग्रेटर देन 9. सो इफ सम हैज टू बी ग्रेटर देन 9, तो सम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10. ओके,
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, probability of A given B is equal to 1/3, probability of B given A is equal to 1/2, probability of A intersection B is equal to 1/6, then find the probability of A union B. अब ऐसा भी एक क्वेश्चन ले लिया सो दैट अगर कभी क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली फॉर्मुला बेस भी आ जाए तो भी तुम इजीली सॉल्व कर सको. A given B का मतलब क्या हुआ? B is given, ठीक है, B is given, so this implies that probability of A given B implies probability of A intersection B divided by B given है तो probability of B, this is equal to 1/3. सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, इस बार ए गिवन है तो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या फिर ए इंटरसेक्शन बी, बात तो एक ही है, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बिकॉज इस बार गिवन क्या है? ए गिवन है और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दी हुई है, सो दैट इज इक्वल टू 1/6. पुट कर दोगे इक्वेशन में तो 1/6 पुट कर दोगे तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी हमारी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1/3 टाइम्स probability of A intersection B. तो 1/3, एक सेकंड probability of B 3 टाइम्स होगा, 1/3 टाइम्स नहीं होगा, ओके 3 टाइम्स हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1/6 विच इज 1/2. सिमिलरली probability of A will be 2 टाइम्स ऑफ probability of A intersection B, यानी कि 2 इंटू 1/6 विच इज 1/3. और क्वेश्चन पूछा probability of A union B, तो probability of A union B will be equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So this will be 1/2 plus 1/3 minus 1/6. LCM ले लोगे, आ जाएगा वैल्यू हमारा 3/6 plus 2/6 minus 1/6. So this will be 4/6 which is 2/3. So answer will be 2/3. Option B will be the answer. Okay, क्या ये पार्ट क्लियर है? Is this much clear? ओके, ठीक है. अब इसी सेम चीज को वेन डायग्राम से करना चाहो वैसे भी कर सकते हो. देखो डिनोमिनेटर्स हमारे हैं 3, 2 एंड 6. तो 3, 2 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम में 6 ही एलसीएम आएगा. तो एज्यूम कर लिया हमने टोटल सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6. टोटल इज 6. नाउ देयर इज सेट A and set B. Okay, probability of A intersection B is 6, 1/6, ठीक है. A intersection B that is 1/6, यानी कि 1 होगा हमारा A intersection B में, because total 6 है. Is that clear? Probability of A given B is 1/3. ध्यान से समझना, probability of A given B is 1/3. If this is A, this is B, तो A given B वाला पार्ट कहां पे आएगा? इंटरसेक्शन वाले पार्ट में आएगा, बिकॉज A given B यानी कि B के अंदर का हमारा पूरा सैंपल स्पेस है एंड A given B इज 1/3, ठीक है. सो दिस पार्ट इज 1/3 ऑफ टोटल B. टोटल B का 1/3 है, सो इफ 1/3 इज 1, इफ 1/3 इज इक्वल टू 1, 1/3 इज इक्वल टू 1, तो B वाला पार्ट टोटल कितना होगा? टोटल होगा 3, सो दिस पार्ट विल बी 2. This part will be 2. Similarly, probability of B given A is 1/2. B given A is 1/2. ठीक है. So this part is 1/2 of A. तो अगर A का 1/2 है तो A must be equal to 2. So this part will be equal to 1. क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है. बिकॉज टोटल हमारा कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्वेश्चन पूछ रहा है. सो A यूनियन B क्या आएगा? 2 + 1 + 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B will be 2 + 1 + 1 divided by 6, which is 4/6. which is 2/3. ऑप्शन बी. और तुमने वेन डायग्राम बना लिया तो तुम्हें बाहर वाले एलिमेंट में पता है कि 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ, 2 यहाँ पे, तो 2 होगा आउटसाइड. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, दैट विल बी 2/6 और 1/3. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन्स 100 टिकट्स 1 2 3 till 100 टिकट्स है. 2 टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम. It is given that the larger number of the two chosen tickets is not more than 10. Find the probability that the smaller number is 5. So 2 tickets are drawn at random out of 100 tickets. It is given that the larger number of the two chosen tickets is not more than 10. So this is given. Given है यानी कि again conditional probability है. Larger number of the two chosen tickets is not more than 10. So find the probability that the smaller number is 5. So probability of smaller number 5
गिवन दैट लार्जर नॉट मोर देन 10 यानी कि लेस देन और इक्वल टू 10, दिस इज गिवन। सो डिनोमिनेटर में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्जर लेस देन इक्वल टू 10 और न्यूमरेटर में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ स्मॉलर इक्वल टू 5 एंड लार्जर लेस देन इक्वल टू 10, इजंट इट सो? ठीक है, सो क्या प्रोबेबिलिटी आएगा हमारा, क्या आएगा न्यूमरेटर में और क्या आएगा डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में आएगा लार्जर शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि जो दोनों हमने टिकट चूज किए हैं, अगर लार्जर भी हमारा लेस देन इक्वल टू 10 है, दोनों ही टिकट्स हमारे लेस देन इक्वल टू 10 है, बोथ द टिकट्स आर लेस देन इक्वल टू 10, इजंट इट सो? सो हमें यानी कि दोनों ही टिकट्स चूज करने हैं फर्स्ट 10 टिकट से, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगा 10c2। भाई लार्जर लेस देन इक्वल टू 10 इंप्लाइज बोथ लेस देन इक्वल टू 10, so both must be chosen from less than equal to 10 tickets यानी कि 10c2। अब न्यूमरेटर में हमें चाहिए स्मॉलर नंबर इक्वल टू 5, स्मॉलर इक्वल टू 5 एंड स्टिल लार्जर लेस देन इक्वल टू 10, तो यानी कि स्मॉलर तो तुम्हारा 5 आ गया, और क्योंकि लार्जर तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 10 आना है, यानी कि अब लार्जर के लिए ऑप्शंस क्या बचे हैं, 6 7 8 9 10, इनमें से कोई एक चूज करोगे, तो स्मॉलर तो फिक्स हो गया। स्मॉलर को चूज करने का एक ही तरीका है, बिकॉज स्मॉलर इज नंबर इज 5 और लार्जर नंबर हमारा क्या है 5c1, तो 5c1 by 10c2, this will be the answer। 5c1 is 5, 10c2 is 10 into 9 by 2, 45, so 5 by 45 is 1 by 9, answer will be 1 upon 9, option D will be the answer, okay, 1 by 9 will be the answer, clear है? Next question, Manu was writing a test, a question has 4 answer choices out of which one is correct, the probability that he knows the answer is 60%, 60% chances are there that he knows the answer, but otherwise he must have guessed. If he has correctly answered the question, we know that he has correctly answered the question. Again, this is the given, this part is given that he has correctly answered the question, so इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? What is the probability that he has guessing, he was guessing? The probability of a guess knowing that the answer is correct, probability of guess knowing that the answer is correct, okay, so denominator में आएगा probability of a correct आंसर और न्यूमरेटर में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस एंड गेस में भी करेक्ट हो जाए, ओके, ठीक है? देखो क्या क्या केसेस बनेंगे हमारे। फर्स्ट केसेस ही नोज द आंसर, 60% चांस है ही नोज, एंड इफ ही नोज तो करेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है? 60% चांस है कि ही नोज और करेक्ट भी हो जाएगा, यहाँ पे ऑल 60% है बिकॉज ही नोज, तो पूरे 60% चांसेस क्या है, करेक्ट होगा। और गेस वाला केस क्या है, 40%, 40%, बट अगर वो गेस करेगा तो 4 में से एक ऑप्शन कोई गेस करेगा आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी होगा करेक्ट होने का, तो 1/4 into 40%, दिस विल बी द चांस ऑफ गेटिंग करेक्ट, isn't it so? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस एज वेल एज करेक्ट कितना है, दैट इज 1/4 into 40% यानी कि 10%, 10%, और प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट होने का क्या है 60%, जबकि ही नोज प्लस 10% व्हेन ही डज नॉट नो बट ही गेस्ड, ठीक है? तो या तो उसको पता था, इधर ही गेस्ड एंड गॉट करेक्ट स्टिल, ठीक है? सो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारा आ गया 10% by 60 plus 10, तो 10 by 70, आंसर आ जाएगा 1/7, आंसर विल बी 1/7, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ठीक है? ठीक है नहीं, ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन, अ बैग कंटेन्स 16 balls, total 16 balls are there in the bag, out of which 7 are red and rest are blue, so 7 balls are red out of 16, so rest which is 9 are blue. 3 balls are taken out one by one without replacement, find probability that first and second are blue and third is red, तो फर्स्ट बॉल हमें चाहिए ब्लू, सेकंड बॉल भी चाहिए ब्लू और थर्ड बॉल चाहिए रेड, तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, फर्स्ट चाहिए ब्लू, तो टोटल बॉल्स अभी कितनी है 16 है, 16 में से हमें क्या चाहिए, एक ब्लू चाहिए, ब्लू सेलेक्ट करना है फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट टाइम ब्लू सेलेक्ट करना है, अभी ब्लू कितनी है 9 है, ब्लू बॉल्स 9 है, ठीक है? 9 बॉल्स ब्लू है, टोटल है 16, तो 9/16 प्रोबेबिलिटी होगा, 9/16 प्रोबेबिलिटी होगा फर्स्ट बॉल ब्लू होने का। अब जब हमने एक बॉल सेलेक्ट कर लिया है तो 7 बॉल्स रेड बची हैं और 8 बॉल्स बची हैं ब्लू, 8 ब्लू बची हैं, ठीक है? तो अब अगेन तुम्हें सेकंड बॉल ही ब्लू ही सेलेक्ट करना है, लेकिन अब टोटल बॉल्स कितनी बची है 15, जिसमें से कि 8 ब्लू है, तो इनटू 8/15, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल बीइंग सेलेक्टेड, ओके? अब बचेंगी बॉल 14 और अब तुम्हें सेलेक्ट करनी है क्या, रेड बॉल सेलेक्ट करनी है, रेड बॉल्स है 3, तो 3/14, तो 9/16 into 8/15 into 3/14, दिस विल बी द आंसर, क्लियर है? अब 7 तो डेफिनेटली हमारे डिनोमिनेटर में रहने वाला है, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, सिंप्लीफाई होकर 1/7 ही होना चाहिए आंसर।
अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 2 बचेगा और एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 1 blue 9/16 into 8/15 into 3/14. First and second are blue, third is red. So I guess कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है क्या? सेवन आर रेड, 7 रेड थी, ये पता नहीं 3 क्यों लिखा है मैंने। हाँ ठीक है, 7 होगा यहाँ पे। तो 1/7 आंसर थोड़ी आएगा फिर, 7 तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो सो वैल्यू आ गया हमारा 3/20। ठीक है, 3/20 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। One ball is randomly drawn from one of the two boxes A and B. Box A contains 6 red and 4 blue balls. Box B contains 3 red and 7 blue balls. If the ball drawn is red, find the probability that it was drawn from box A. Again, given is that the ball drawn is red. That is given. So we have to find the probability that it was drawn from box A. ठीक है, this is given that ball drawn is red. The probability of drawn from box A when it is given that ball is red. तो बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सबसे पहले बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, सो बॉक्स ए में भी है 6 रेड एंड 4 ब्लू, टोटल बॉल्स हैं 10। बॉक्स बी में भी है 3 रेड एंड 7 ब्लू, टोटल बॉल्स हैं 10। सो अगर बॉक्स ए से हमें रेड बॉल निकालना है, देखो वन बॉल इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द टू बॉक्सेस, तो कौन से बॉक्स से निकालना है? किसी से भी निकाल सकते हैं। और क्योंकि बॉक्स ए और बॉक्स बी के सेपरेट प्रोबेबिलिटी तो नहीं दिया है, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी होगा निकालने का कि बॉक्स ए चूज करो या बी चूज करो। अनलेस प्रोबेबिलिटी गिवन होता है कि बॉक्स ए से निकालने की प्रोबेबिलिटी 40% है, बॉक्स बी से प्रोबेबिलिटी निकालने की 60% है, तो डिफरेंट होता, तब डिफरेंटली कंसीडर करते अगर गिवन होता तो क्वेश्चन में। बट वैसा गिवन नहीं है, तो बॉक्स ए से निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। 1/2 चांसेस देयर तुम बॉल निकालोगे बॉक्स ए से। और अगर बॉक्स ए से तुमने बॉल निकाला, वो बॉल रेड निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 6/10। तो 1/2 इंटू 6/10 रेड फ्रॉम बॉक्स ए। यही अगर बॉक्स बी से निकालोगे और या तो फिर बॉक्स बी से निकलेगा तो ऐड होगा, और बॉक्स बी से निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 इंटू बॉक्स बी से रेड निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/10। और न्यूमरेटर में क्या आएगा? बॉक्स ए से रेड बॉल निकले, ये न्यूमरेटर में आएगा, यानी कि दिस वैल्यू विल बी इन द न्यूमरेटर 1/2 इंटू 6/10। सो डिनोमिनेटर का 20 तो कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर में बच जाएगा 6 और डिनोमिनेटर बचेगा 6 प्लस 3। सो दिस विल बी 2/3। आंसर विल बी 2/3। ओके, 2/3 विल बी द आंसर। क्लियर है? आंसर आ जाएगा 2/3, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ओके, ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A person goes to office either by car, scooter, bus or train. 4 choices are there. The probability of which being 1/7, 3/7, 2/7 and 1/7. तो कार से जाने की probability 1/7 है, स्कूटर से जाने की 3/7, बस की 2/7 and ट्रेन की 1/7. The probability that he reaches the office late if he takes a car, scooter, bus or train is 2/9, 1/9, 4/9 and 1/9. Given that he reaches office on time. So again this is given that he reaches office on time. So what is the probability that he traveled by car? The probability of his traveling by car given that reaches on time. So this will be equal to probability of car intersection on time divided by probability on time, probability of reaching on time. So on time reach करने की probability क्या होगा? डिनोमिनेटर वैल्यू क्या आएगा? देखो हमें जो probabilities given है, probabilities that he reaches office late, तो ऑफिस लेट पहुंचने की probabilities given है 2/9 by car, 1/9 by scooter, 4/9 by bus and 1/9 by train. तो अगर वो कार से जाना प्रेफर करता है, कार से जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/7. सो 1/7 चांसेस आर दैट ही विल बी गोइंग बाय कार।
बट इफ ही इज गोइंग बाय कार तो ऑन टाइम पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2/9 तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी है, ऑन टाइम पहुंचने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 2/9, 1 - 2/9. Okay, plus if he is going by scooter, so in case of scooter probability of going by scooter is 3/7 into लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/9 तो टाइम पहुंचने की होगी 1 - 1/9 प्लस गोइंग बाय बस प्रोबेबिलिटी इज 2/7 and probability of being on time will be 1 - 4/9 plus going by train the probability is 1/7 and on time की probability होगी 1 - 1/9. So ये सारी वैल्यूज तो आ गई हमारी डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार से जाना और टाइम पे पहुंचना. सो दैट इज 1/7 into 1 - 2/9 यानी कि 1/7 into 7/9. ओके, विच इज बेसिकली 1/9. ओके, तो डिनोमिनेटर में आ गया 1/9. डिनोमिनेटर वैल्यू को एक बार फिर से प्रॉपर्ली कैलकुलेट करते हैं तो 1/9 आ गया, डिनोमिनेटर में आएगा 1/7 into 7/9 विच इज 1/9 प्लस या फिर 1/7 into 7/9, इसको वैसा ही रहने देते, 1/9 नहीं करते हैं ताकि सारे डिनोमिनेटर सेम ही रहे. So 7/7 into 9 plus this will be 3 into 8, 24 upon 7 into 9 plus 2 into 5, 10 upon 7 into 9 plus 8 upon 7 into 9. ठीक है, so this becomes 1 upon 9 और बेसिकली 7 upon 7 into 9, यहाँ पे ऊपर भी वैसे लिख दो क्योंकि 9 into 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 plus 24, 31, 41, 49, 49 upon 7 into 9. तो 7/49 इज 1/7, आंसर आ जाएगा 1/7. ओके, क्लियर है, आंसर विल बी 1/7. ठीक है, बट ये प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद में आएगा. ऐसा नहीं सोचना है कि पर्सन गोज टू ऑफिस इधर बाय कार, उसकी प्रॉबिलिटी 1/7 है तो इसलिए 1/7 है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, सो प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद में ही 1/7 आंसर है, दैट इज फाइन, बट दैट इज द प्रॉपर प्रोसेस. क्या है, क्लियर है? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a game between two persons A and B, both draw a card from a pack of 20 cards numbered from 1 to 20. Both persons draw a card from a pack of 20 cards numbered from 1 to 20, replacing the card each time after the draw. So एक बार ड्रॉ किया, ड्रॉ करके आउटकम देखा क्या आया और फिर वापस से कार्ड को रख दिया, वापस से कार्ड को पैक में रख दिया. यानी कि हर बार जब ड्रॉ हो रहा है तो नंबर ऑफ कार्ड्स इज नॉट चेंजिंग, दैट इज टोटल कार्ड्स आर 20 ओनली. ठीक है, दे आर नॉट चेंजिंग बिकॉज एवरी टाइम द कार्ड इज रिप्लेस्ड आफ्टर द ड्रॉ until a prime numbered card is obtained, until a prime numbered card is obtained. और नंबर्स हमारे क्या है, 1 से लेकर 20 तक है, तो कितने प्राइम नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर्स कितने होंगे 1 से लेकर 20 तक के, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. टोटल प्राइम्स हो गए हमारे 8 प्राइम्स हो गए, 8 प्राइम्स आउट ऑफ 20. The first one to draw a prime card wins the game. First one to draw a prime card wins the game. If A starts the game, find the probability that A wins the game. A ने गेम को स्टार्ट किया है, so what is the probability that A is the winning the A will be winning the game. ठीक है, so प्राइम ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ प्राइम विल बी 8 है, प्राइम कार्ड टोटल है 20, 20 में से कोई एक ड्रॉ कर रहे हो तो डिवाइड बाई 20 होगा, 8/20, 20 में से कोई भी एक आ सकता है और 8 में से एक आएगा तो जीत जाएगा, तो 8/20 इज 2/5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द प्राइम इज 2/5. ठीक है, ए इज स्टार्टिंग द गेम, तो ये हो सकता है कि फर्स्ट चांस में ए जीत जाए, इज इट सो? तो इफ ए विंस इन द फर्स्ट चांस तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2/5. ड्रॉ करे और ड्रॉ करते ही प्राइम आ जाए तो विल विनिंग द गेम. ठीक है, अगर फर्स्ट चांस में ए नहीं जीतता है तो फर्स्ट चांस में तो ए नहीं जीता, 3/5 प्रोबेबिलिटी होगा फॉर नॉट ड्रॉइंग अ प्राइम, क्योंकि जब प्राइम ड्रॉ नहीं करेगा तभी नहीं जीतेगा, इज इट सो? तो 3/5 प्रोबेबिलिटी आ जाएगा प्राइम नहीं ड्रॉ करने का. फर्स्ट चांस एग्जॉस्ट हो गया ए का. अब सेकंड चांस आएगा किसका, बी के लिए आएगा, बट बी को नहीं जीतना है बिकॉज हमें ए को ही जिताना है, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस द गेम. तो बी को नहीं जिताने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी भी प्राइम ड्रॉ नहीं कर पाए, इज दैट सो? तो बी भी प्राइम नहीं ड्रॉ कर पाए, क्योंकि अगर बी ने प्राइम को ड्रॉ कर लिया तो बी जीत जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी होगा 3/5 अगेन फॉर बी. बट नाउ थर्ड चांस में अगेन ए खेलेगा और इस बार हम ए को जिता देंगे. भाई या तो फर्स्ट चांस में जीत जाता तो चलता, अब थर्ड चांस में जिताएंगे उसको, तो थर्ड चांस में जिताने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट विल बी 2/5 ड्रॉइंग अ प्राइम. ठीक है, तो देखो फर्स्ट चांस में प्राइम मिल जाए तो चलेगा, फर्स्ट में प्राइम नहीं मिला नॉन प्राइम, तो सेकंड में बी को नॉन प्राइम मिलना चाहिए और फिर थर्ड में प्राइम मिल जाए ए को. ठीक है, ए बी ए,
या फिर नॉन प्राइम इन द फर्स्ट चांस, नॉन प्राइम इन द सेकंड चांस, नॉन प्राइम इन द थर्ड चांस, नॉन प्राइम इन द फोर्थ चांस एंड फिर प्राइम मिल जाए फिफ्थ चांस में. सो दीज आर द केसेस. फर्स्ट में जीते, थर्ड में जीते, फिफ्थ में जीते, सेवन में जीते एंड सो ऑन. ठीक है, तो अब सेकंड में जीतने की, थर्ड में जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या आई, 3/5 स्क्वायर इंटू 2/5. ठीक है, दिस इज 3/5 स्क्वायर इंटू 2/5. तो फिफ्थ में जीते अल्टीमेटली जाके ए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि फर्स्ट 4 टाइम्स में प्राइम नहीं है तो 3/5 टू द पावर 4 और फिर फिफ्थ चांस में आ जाए यानी कि 2/5 टू द पावर 1. क्लियरली इसके बाद में एक जीपी फॉर्म हो रहा है हमारा. दिस इज अ क्लियर जीपी बिकॉज अब 7 चांस में जीतेगा तो 3/4 टू द पावर 6 इंटू 2/5 टू द पावर 1. एक ओके, तो एक जीपी फॉर्म हो रहा है 2/5 प्लस 3/5 का स्क्वायर इंटू 2/5 प्लस 3/5 टू द पावर 4 इंटू 2/5 प्लस 3/5 टू द पावर 6 इंटू 2/5 एंड सो ऑन. तो देयर इज अ क्लियर जीपी जिसका फर्स्ट टर्म है 2/5 और एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका कि कॉमन रेशियो आ रहा है 3/5 स्क्वायर यानी 1 - 9/25. So this will be 2/5 upon 25 minus 9 or 25 minus 9 which is 16/25. ऊपर है 2/5, नीचे है 16/25. ओके, सो न्यूमरेटर में भी कर दोगे 10/25. सो दिस विल बी 10/25 अपॉन 16/25, 10/16. आंसर आ जाएगा 10/16 विच इज 5/8. आंसर विल बी 5/8. इज दैट क्लियर? एंड इन जनरल ऑल्सो इफ गेम इज देयर बिटवीन 2 पर्सन्स, ठीक है, 2 पर्सन गेम को खेल रहे हैं, अगर कोई एडिशनल कंडीशन नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या होगा, 1/2 होगा. इज दैट इट? सो इफ देयर इज नो एडिशनल कंडीशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग विल बी 1/2. बट सिंस ए इज स्टार्टिंग द गेम, तो जो पर्सन गेम स्टार्ट कर रहा है ही इज एट द एडवांटेज. एडवांटेज क्या है उसके पास में, बिकॉज इवन इफ जो भी प्रोबेबिलिटी होगी जीतने की, ठीक है, सिंस ही इज स्टार्टिंग द गेम तो उसके पास उसको पहला मौका मिल रहा है, तो चांसेस आर कि वो पहली बार में ही जीत जाए. वो एक अनड्यू एडवांटेज है. Isn't it so? So that is why chances will be always greater than 50% for the person that is starting the game to win the game. ठीक है, अगर क्वेश्चन ये कहता if A starts the game, find the probability that B wins the game, so that would have been less than half. Probability of A winning the game will be greater than 1/2 for sure, irrespective of the other conditions. ठीक है, in general. ठीक है, in general. और probability of B winning the game will be less than 1/2. ठीक है, unless बहुत ही एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं है कि A के लिए चांसेस कुछ और है, कि ए के लिए कह दिया गया कि अगर 1 आउटकम आएगा तो तुम जीतोगे और बी को कह दिया गया 1 के अलावा कुछ भी आएगा तो तुम जीत जाओगे. ठीक है, सो अगेन इन दैट केस डेफिनेटली बी के लिए चांसेस ज्यादा हो जाएंगे बिकॉज बी को तुम फेवर कर रहे हो. ठीक है, द गेम इज नॉट फेयर, इट इज बायस्ड. बट अगर कंडीशंस फेयर हैं तो इन दैट केस द पर्सन स्टार्टिंग द गेम विल हैज हायर चांसेस ऑफ विनिंग द गेम इन जनरल. ओके, इन अ फेयर गेम ऑब्वियसली. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. Tarun has 4 letters to be sent to 4 different addresses. He prepared an envelope with correct addresses for each letter. If the 4 letters are to be put into the 4 envelopes at random, what is the probability that only 1 letter will be put into the envelope with correct address? 4 letters है, 4 addresses, addressed envelopes है, और क्वेश्चन ये कह रहा है 4 letters are to be put into the 4 envelopes at random. Randomly हमने put कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया कि कौन से लेटर को कौन से एड्रेस पे भेजना है, रैंडमली डाल दिया. ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 1 लेटर विल बी पुट इनटू द एनवेलप विद करेक्ट एड्रेस. तो अगर हमारे ए बी सी डी लेटर से दीज आर correct letters for small a, small b, small c, small d, these are correct envelopes. ठीक है, these are letters and these are envelopes. So exactly 1 letter has to be put into correct address. ठीक है, exactly 1, neither more nor less. So a को हमने a लेटर को a में ही पुट कर दिया, a करेक्ट हो गया. अब बाकियों को इनकरेक्ट रखना है, हमको बाकियों को इनकरेक्ट रखना है. ठीक है, सो ए को ए में ही पुट कर दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट प्रोबेबिलिटी विल बी, क्योंकि ए को पुट करते समय फर्स्ट लेटर है, पुट करते समय कितने हमारे पास चांसेस थे, वी कुड हैव पुट इट इन एनी ऑफ द 4 एनवेलप्स, तो 1/4 चांसेस थे करेक्ट में पुट करने के, बट हमने पुट कर दिया. ठीक है, ए को करेक्ट में पुट कर दिया. ओके, नाउ अब बी को हमें करेक्ट में पुट नहीं करना है, अब तो सबको इनकरेक्ट में पुट करना है. सो बी को करेक्ट में पुट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी के सामने 3 चॉइसेस हैं, इधर बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, दीज 3 आर एनवेलप्स. बट इनमें से इनकरेक्ट वाले कौन से हैं, इनकरेक्ट वाले हैं हमारे सी एंड डी. ओके, सो लेट अस से हमने सी को चूज कर लिया. प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सी को चूज करने की या इनकरेक्ट को चूज करने की, 2/3 होगी. 2/3 होगी बिकॉज सी एंड डी आर इनकरेक्ट और टोटल है 3, तो 2/3 विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन इनकरेक्ट 1. इनकरेक्ट 1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 होगी. अब तुम सी को ऑब्जर्व करो, अब सी को चूज करना है इनकरेक्ट को, ठीक है, और डी को भी चूज करना है इनकरेक्ट को, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सी को भी इनकरेक्ट को चूज करना है और डी को भी इनकरेक्ट को चूज करना है.
ठीक है, क्लियर है। तो अब प्रॉबिलिटी हमारी क्या आने वाली है कि दोनों ही इनकरेक्ट को चूज करें। ये तब होगा, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन सी इज चूजिंग डी एंड डी इज चूजिंग बी, बिकॉज यहां पे केसेस देखो दो बनेंगे, दो केसेस बनेंगे। एक केस हो सकता है कि सी इज चूजिंग बी, इन दैट केस डी को चूज करना पड़ेगा डी, तो इस केस में डी भी करेक्ट पे पहुंच गया, isn't it so? और दूसरा केस होता है कि सी चोज डी एंड डी चोज बी, सो इन दैट केस इनकरेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट वाला ऑप्शन एक ही है, so यानी कि इन टू 1/2 करोगे, दिस विल बी टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, जिस केस में कि एग्जैक्टली वन लेटर विल बी पुट इनटू द एनवेलप विद करेक्ट एड्रेस, बाकी सब इनकरेक्ट पे गए हैं, बट यहां पे पहला केस हमने क्या चूज किया, जबकि ए वाला करेक्ट पे गया, और ऐसे बी वाला करेक्ट पे जा सकता है, ऐसे सी वाला जा सकता है, ऐसे डी वाला जा सकता है, तो 4 से मल्टीप्लाई भी करोगे। ये मल्टीप्लिकेशन को क्या है, बिकॉज ए करेक्ट पे गया, ये केस हुआ, बी करेक्ट पे गया, ये सेकंड केस होगा, सी करेक्ट पे गया, ये थर्ड केस होगा, डी करेक्ट पे जाएगा, ये फोर्थ केस होगा। तो इन चारों केसेस को इंक्लूड करोगे तो 4 × 1/4 × 2/3 × 1/2, दिस आंसर विल बी, दिस विल बी टोटल आंसर। ओके, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो आंसर हमारा आ जाएगा इक्वल टू 4 × 1/4 1 हो जाएगा, 2/3 × 1/2 विल बी 1/3, तो आंसर विल बी 1/3, आंसर कम्स आउट टू बी 1/3। ओके, क्लियर है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते थे कि एज सच वी हैव 4 लेटर्स ए बी सी डी एंड 4 एनवेलप्स, सो टू अरेंज लेटर्स इनटू एनवेलप्स नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल, टोटल वेज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल, बिकॉज किसी भी लेटर को किसी एनवेलप में हम पुट कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल टोटल वेज हो गए। अब काम के वेज क्या है, काम के वेज वो है जहां पे कि एग्जैक्टली वन लेटर इज पुट इनटू द एनवेलप विद करेक्ट एड्रेस, ठीक है। सो सबसे पहले तो चूज करें उस लेटर को, 4C1 तरीके से वी कैन चूज दैट लेटर, कि ए को डालेंगे करेक्ट एनवेलप में, या फिर बी को, या फिर सी को, या फिर डी को, तो 4 वेज आर देयर मल्टीप्लाइड बाय। अब अगर तुमने ए को करेक्ट एनवेलप में डाला लेटर से, ए इज पुट इनटू द करेक्ट एनवेलप, ओके। अब बात हो गई बी सी डी की, अब इन सबको इनकरेक्ट पे डालना है, तो नंबर वेज कितने आएंगे, बी को इनकरेक्ट में डालने के 2 तरीके हैं, 2 वेज आर देयर, ठीक है। बट जैसे ही बी को तुमने इनकरेक्ट में डाल दिया, लेटर से सी में डाल दिया, तो उसके बाद में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि एक्जैक्टली फिर एक ही तरीका तुम्हारा बचता है फॉर सी एंड डी टू बी द इनकरेक्ट, टू बी इन द इनकरेक्ट एनवेलप, बिकॉज सी को तुमने अगर बी में पुट कर दिया तो डी डी में चला जाएगा, विच विल बी अ करेक्ट एनवेलप, और ये वाला केस हमें कंसिडर नहीं करना है। सेकंड केस आ सकता है सी को पुट किया डी में और डी को पुट किया बी में, तो आउट ऑफ दीज टू ओनली वन इज करेक्ट, सो एक्जैक्टली वन वे, तो 4 × 2 × 1, ठीक है। ये टोटल काम के वेज आ गए, तो 4 × 2 × 1 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, दिस इज 8/24 विच इज 1/3, आंसर आ गया 1/3 विच इज ऑप्शन नंबर ई। ओके, बट एक और चीज सीख लेते हैं, डिरेंजमेंट हमने नहीं सीखा है, तो इसलिए डिरेंजमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करके भी एप्लीकेशन सीख लेते हैं उसका। डिरेंजमेंट फॉर्मूला फॉर n values, this is n factorial into 1 minus 1/1 factorial plus 1/2 factorial minus 1/3 factorial and so on, ठीक है, टिल लास्ट में आएगा 1/n factorial। ओके, दिस इज डिरेंजमेंट फॉर्मूला, और डिरेंजमेंट implies that n items, ठीक है, all arranged in incorrect order, सो अगर डिरेंजमेंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन सॉल्व करें तो वी हैव टू पुट एग्जैक्टली वन लेटर इनटू द एनवेलप विद करेक्ट एड्रेस, तो हमें 4C1 तरीके से वी कैन चूज दैट लेटर कि कौन सा लेटर होगा, ठीक है। और फिर बचे हुए 3 जो लेटर्स हैं, बिकॉज 3 बच गए, उनको इनकरेक्ट में डालना है, तो बचे हुए 3 को डिरेंज करना है, करेक्ट में नहीं जाना चाहिए, कोई भी एक भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सो डिरेंज करना है उनको, 4C1 into D3, तो D3 की वैल्यू क्या आएगा, D3 विल बी 3 फैक्टोरियल into 1 minus 1/1 factorial plus 1/2 factorial minus 1/3 factorial, और 1 minus 1/1 factorial ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 factorial is 3 factorial is 6, 1/2 factorial is 1/2 minus 1/6, so this is 2/6, 6 into 2/6, this is equal to 2, तो D3 is equal to 2, okay, 4C1 into D3 divide by 4 factorial, so आंसर आ जाएगा 4 into 2 divide by 24 which is 1/3, okay। बिकॉज 3 वाला केस था तो हमने इजीली मैनुअली भी सॉल्व कर लिया, बट अगर हमें 4 का डिरेंजमेंट करना होता तो प्रॉब्लम हो जाती, फिर तो ऐसे नहीं कर पाते, तो फॉर्मूला ही यूज करते उस केस में। D4 विल बी 4 फैक्टोरियल इंटू 1 minus 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल,
फर्स्ट टू टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24. अब चाहे तो एलसीएम ले लो या फिर मल्टीप्लाई कर लो. 12 माइनस 4 प्लस 1. सो दिस विल बी 8 प्लस 1 9. So to rearrange for 4 items all to be arranged in incorrect order, the number of ways will be equal to 9. क्लियर है. बाकी डिरेंजमेंट मैंने एक सेपरेटली एक छोटा सा सेशन भी बनाया हुआ है, तुम चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो अगर फिर भी और क्वेश्चंस एक दो प्रैक्टिस करने हो. अदरवाइज इतना सफिशिएंट है एग्जाम के लिए तुम्हारे लिए. ठीक है. डिरेंजमेंट का फॉर्मुला पता हो, अगर जरूरत पड़े तो अप्लाई कर दो, नहीं जरूरत पड़ेगी तो टेंशन क्या है, फिर तो इजिली सॉल्व कर ही लोगे. ठीक है. सो इतना ही रखते हैं सेशन में. आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में होगा और कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा. इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट. And if you've liked the session, then make sure you hit the like button as well. And if you have not already subscribed to the channel, make sure to subscribe to the channel as well. Okay, all the best for the examinations. Bye bye. Take care and keep learning.